رمضان میں ڈیجیٹل والٹ کے ذریعے 5,000 روپے 40 لاکھ خاندانوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ 2 کروڑ سے زائد افراد اس سے مستفید ہوں گے۔ رمضان ریلیف پیکج کے لیے SMS سروس 8070 پر رجسٹریشن ہوگی۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ڈیجیٹل رمضان ریلیف پیکج متعارف کروا دیا گیا ہے۔ جو آپ کو اسکیم چاہیے میں اس کی ڈیٹیلز آپ کو بھیج دوں گی، کیونکہ اگر کہیں بھی پاکستان میں کسی کا بھی بھلا ہوگا، چاہے وہ کسی صوبے میں رہتا ہو، تو وہ مجھے خوشی ہوگی بطور پاکستانی کہ ہماری کوئی چیز ان کے کام آئی ہے۔ آخرکار آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ آپ تمام لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری آ چکی ہے۔ اس بار 5,000 نہیں، 10,000 نہیں، آپ کو 20,000 روپے کی نقد رقم ملنے جا رہی ہے، وہ بھی رمضان پیکج کے تحت۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو ایک ایسا طریقہ کار بھی بتانے جا رہے ہیں جس کے ذریعے آپ رمضان پیکج کا حصہ بنیں گے اور آپ کو دگنا رقم دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، 10,000 روپے جیسے آپ کو پنجاب حکومت میں مطلب نگہبان رمضان پیکج کے تحت مل رہے ہیں، تو وہ 10,000 روپے کے بجائے 20,000 روپے دیے جائیں گے۔ جی ہاں، کافی سارے لوگوں کو اس بات پہ یقین نہیں ہوگا، لیکن جو لوگ سنیں گے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو اتنی بڑی رقم ملے، تو وہی لوگ غور کریں۔ انشاءاللہ آپ کو یہ اتنی بڑی رقم ضرور ملے گی۔ حکومت پنجاب کی جانب سے یا وفاقی حکومت کی جانب سے یا حکومت سندھ کی جانب سے بہت بڑے بڑے رمضان پیکجز جاری کیے گئے ہیں، تو یہ آپ تمام لوگوں کے لیے ہیں، یہ کسی دوسرے ملک کی عوام کے لیے تو نہیں ہے۔ اتنا بڑا پیکج جو ہے یا اتنا بڑا بجٹ جو ہے پیش کیا گیا ہے، وہ آپ تمام لوگوں میں ہی تقسیم ہونا ہے، وہ کہیں اور نہیں جانا۔ لیکن جن لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے وہ لوگ جو صحیح طور پہ معلومات سنتے ہیں، صحیح طور پہ اپنی رجسٹریشنز کرواتے ہیں اور جو حقدار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس سے پہلے تو آپ کافی عرصہ سے دیکھ رہے تھے کہ جو لوگ حقدار نہیں تھے ان کو بھی امداد مل رہی تھی، چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو یا کوئی رمضان پیکج ہو۔ ان پیکجز میں یا ان سکیمز میں وہ لوگ بھی شامل تھے جن کا حق ہی نہیں بنتا تھا کہ وہ اس پروگرام میں اہل ہوں۔ لیکن اس بار جو ہے شفاف ترین رمضان پیکج آپ تمام لوگوں کے لیے لایا جا رہا ہے۔ جتنی بھی رقم ہے وہ آپ تمام لوگوں میں تقسیم ہونی ہے، وہ حقدار لوگوں میں تقسیم ہونی ہے، اور لائنوں قطاروں والا جھنجٹ بھی نہیں ہے۔ تو اس میں آپ کو تھوڑا سا دھیان بھی دینا ہوگا، صحیح رجسٹریشنز بھی کروانی ہوگی، اور بعد میں اپنی رقم نکلوانے کے حوالے سے بھی احتیاط کرنی ہوگی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنی رقم جو ہے آخری روزے تک بھی نہیں نکلوا پاتے، تو ان کی رقم پھر واپسی حکومت کے خزانے میں چلی جاتی ہے۔ لہٰذا ان چیزوں پر بھی آپ تھوڑا سا فوکس کیا کریں کہ بھئی جب آپ اہل بھی ہو جاتے ہیں، ایک رقم بھی آپ کو مل رہی ہے، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ بھی جاتی ہے، پھر بھی آپ کی غفلت سے وہ اگر آپ نہیں لے پاتے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے کہ وہ رقم واپس چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال ایک اہم ترین اپڈیٹ جو ہے وہ آج ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اس پر عمل کر لیتے ہیں تو رمضان پیکج کا حصہ بھی ضرور بنیں گے، آپ کو رقم بھی ضرور ملے گی، آئندہ کے لیے بھی آپ انشاءاللہ اس طرح کی سکیمز کا حصہ بنتے رہیں گے۔ اچھا، ایک اور بڑی اپڈیٹ بھی آپ کو دے دیں کہ کافی سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں ہر پروگرام کا حصہ بننا چاہیے، مطلب ہر پروگرام سے انہیں امدادی رقم ملے۔ لیکن یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر وفاقی حکومت کا رمضان پیکج چل رہا ہے تو وہ ان تمام لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو متوسط طبقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور جو صوبائی حکومتیں رمضان پیکج دے رہی ہیں ان کا بھی وہی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ صرف حقدار لوگوں تک ان کا حق پہنچنا چاہیے۔ تو اس میں یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ سارے لوگ تو نہیں ہوتے جن کو صوبہ کی جانب سے بھی امداد مل رہی ہو اور وفاق کی جانب سے بھی امداد مل رہی ہو، لیکن بہت بڑی تعداد میں ایسی فیملیز آ جاتی ہیں جنہیں وفاق کی جانب سے بھی امداد مل رہی ہوتی ہے، وزیر اعظم کے رمضان ریلیف پیکج میں بھی ضرور اہل کیا جائے گا، اور اس کے صوبہ کی جانب سے بھی انہیں رمضان پیکج کا حصہ بنایا جائے گا۔ تو اس صورت میں آپ کو احتیاط سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، پچھلے سال آپ نے سنا ہوگا کہ جن لوگوں کو 10,000 روپے کے چیک ملے تھے پنجاب میں، ان لوگوں کے بے نظیر پروگرام والے پیسے بند ہو گئے تھے، تو وہ ان کی اپنی غلطی تھی جس وجہ سے ان کے پیسے بند ہوئے تھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، اگر یہ آپ نہیں کرتے تو آپ کسی بھی پروگرام سے ایسے بلا وجہ نااہل نہیں ہوں گے۔ بہرحال کافی لوگ ابھی بھی پریشان ہیں کہ ہم اپنی رجسٹریشن کیسے کروائیں، رمضان پیکج کا حصہ کیسے بنیں گے، ہمیں اتنی بڑی رقم کیسے ملے گی، 10,000 روپے پچھلے سال تو ہمیں ملے تھے، اس بار ملیں گے یا نہیں ملیں گے، پچھلے سال 5,000 روپے ملے تھے تو اس بار کتنی رقم ملے گی۔ تو یہ کافی سارے سوالات ہیں جن پر آج ہم آپ کو انشاءاللہ تفصیلی جوابات بھی دیں گے اور آپ کو خوشخبریاں بھی سنائیں گے۔ تو وہ تمام حضرات جو پچھلے سالوں کی طرح اس بار بھی رمضان پیکج کا حصہ بننا چاہتے ہیں، امداد لینا چاہتے ہیں، وہ بھی اس معلومات کو غور سے سنیں، اور وہ لوگ جو پچھلے سالوں میں رمضان پیکج کا حصہ نہیں بن پائے تو وہ لوگ بھی تھوڑا غور کریں گے، تو انشاءاللہ اس بار 2026 کے رمضان پیکج میں ضرور اہل ہوں گے اور ضرور امداد آپ کو جاری کی جائے گی۔ ایک اور اپڈیٹ جو کہ شناختی کارڈز کے حوالے سے ہے کہ جن لوگوں کے شناختی کارڈ پر سابق رجسٹرار جنرل عثمان یوسف مبین کا نام لکھا ہوا ہے یا اس کے سگنیچر ہوئے ہیں، تو ان شناختی کارڈز پر کوئی فنڈ مل رہا ہے، کوئی نقد رقم مل رہی ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ جتنے لوگوں کے شناختی کارڈ پر عثمان یوسف مبین کا نام لکھا ہوا ہے تو ان کو یہ رقم مل سکتی ہے یا نہیں، یا کیسے مل
सकती है, इस पर भी बात करेंगे क्योंकि इस पर भी काफी सारे लोग बार बार सवाल कर रहे हैं। इससे पहले भी हम मुख्तलिफ वीडियोस में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी जो लोग पहली बार चैनल पे आते हैं तो वो जरूर सवाल करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तफसीर की जानिब। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया, या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो वो अभी से यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। और हाँ, जो लोग रमजान पैकेज का हिस्सा बनना चाहते हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि रमजान पैकेज की रजिस्ट्रेशन और हर हवाले से तमाम अहम तरीन मालूमात अगले 2 से 3 दिन में इसी चैनल पर आएंगी। तो जिन लोगों को वो मालूमात मिल गई वो इंशाल्लाह रमजान पैकेज का हिस्सा भी जरूर बनेंगे। तो अभी से आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं तफसीर की जानिब, गौर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। इस बार हुकूमतों ने अवाम के लिए खजानों के मुंह खोल दिए हैं और अवाम पर पैसे की बरसात की जा रही है। जी हाँ, आप देखेंगे कि इस बार पिछले सालों की निस्बत ज्यादा इमदादी रकम मिलेंगी और ज्यादा अवाम में ये रकम तकसीम होगी। पिछले साल आप जानते हैं कि पंजाब हुकूमत ने भी कोई 30 लाख के करीब खानदानों को ये इमदाद फराहम की थी। इस बार 42 लाख खानदानों को ये इमदादी रकम मिलने वाली है और फी खानदान 10-10 हज़ार रुपए भी मिलने वाले हैं, साथ में निगहबान कार्ड भी मिलने वाला है। तो इस पर आपको मजीद वजाहत की जरूरत ही नहीं है, आपको इस पर पहले से मालूम हो चुका है। हम भी पहले से कंफर्म अपडेट्स आपके साथ शेयर कर चुके हैं, लेकिन आज कुछ सवालों के जवाब हम देने वाले हैं। काफी सारे लोगों को मसाइल आते हैं लेकिन वो मसाइल हल नहीं करवा पाते, जिस वजह से उन्हें ना ही रमजान पैकेज में अहल किया जाता है ना किसी स्कीम में अहल किया जाता है। अब काफी सारे लोगों ने एक ही सवाल किया है कि भाई हमें कभी किसी इमदादी स्कीम में अहल नहीं किया गया, हम बेनजीर प्रोग्राम में भी शामिल नहीं है और हमें रमजान पैकेज में भी शामिल नहीं किया जाता। तो जब उनमें से कुछ लोगों से हमने ये सवाल पूछा कि भाई आप हमें ये बताएं कि आपने मुतलका प्रोग्राम या मुतलका स्कीम पैकेज के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी, तो उसने बोला कि भाई हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। ठीक है, हम रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते, हमारे पास तो कोई तरीकेकार ही नहीं था। तो भाई इसका सीधा सीधा जवाब ये होता है कि भाई अगर आप किसी प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो आप अहल भी नहीं होंगे। ये रजिस्ट्रेशन क्यों की जाती है ये आपको पहले बता दें। आप माशाल्लाह खुद इस हवाले से समझ रहे होंगे कि भाई ये रजिस्ट्रेशन इसलिए की जाती है कि हुकूमत को पता चले कि भाई ये बंदा हकदार है या नहीं। तो जब आप हुकूमत को बताएंगे भी नहीं, आप उसको अपना डेटा फराहम भी नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन सर्वे भी नहीं करवाएंगे, तो फिर हुकूमत को कैसे पता चलेगा। वो कोई जादू के जरिए तो आपको देख नहीं रहे होते, या कोई ऐसा चमत्कार तो हो नहीं रहा कि वो आपको ऐसे ही जांच कर लें और आप कोई रजिस्ट्रेशन सर्वे ही ना करवाएं, उन्हें पता चल जाए कि हाँ ये बंदा हकदार है, इससे इमदाद मिलनी चाहिए। तो ऐसे नहीं होता। ठीक है, अब ये जितने भी सर्वे हुए हैं, NSCR सर्वे है या PSCR सर्वे है, इसमें भाई आपका राब्ता नंबर भी लिया जाता है, आपका एड्रेस भी लिया जाता है, आपका ID कार्ड नंबर भी लिया जाता है और आपकी तमाम तर मालूमात जो आप ही के मुतालिक होती हैं वो तमाम तर मालूमात ली जाती हैं। उसके बाद जाके आपका सर्वे जो है मुकम्मल किया जाता है। अगर कोई एक छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है या मोबाइल नंबर भी फर्ज किया आप नहीं लिखवाते तो वो सबमिट नहीं होगा, आपका सर्वे मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि आप मोबाइल नंबर नहीं लिखवाएंगे। तो इसलिए हमेशा से हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि आपका सर्वे, आपकी रजिस्ट्रेशन बहुत लाजमी होती है। अगर आपका इंदराज नहीं हुआ होगा, सर्वे नहीं हुआ होगा, तो बाद में आप पछताएंगे कि भाई हमें इमदाद नहीं मिली और हमारी अपनी ही गलती है। ठीक है, बहरहाल अब रमजान पैकेजेस के बारे में बात करें तो इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। ठीक है, पहले वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के रमजान रिलीफ पैकेज की बात करें तो भाई इसका डेटा भी हुकूमत के पास पहले से मौजूद है। वो तमाम लोग जो BISP के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं, चाहे अब अहल हैं या नहीं है, उनके लिए खुशखबरी ये है कि BISP के डेटा से मदद ली जा रही है इस रमजान रिलीफ पैकेज की बेनिफिशरीज को मुंतखब करने के लिए। तो अब वो लोग भी आप देखेंगे कि जिनका PMT स्कोर बहुत कम है, उनको पहले कोई इमदाद नहीं मिल रही थी किसी न किसी वजह से, लेकिन वो रमजान पैकेज में जरूर अहल होंगे और रमजान पैकेज से उन्हें इमदाद भी जरूर फराहम की जाएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस बार हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वो जितने भी लोग किसी जुगाड़ के तहत अहल हुए पड़े थे या फिर पुराने डेटा से वो काफी अरसा से अहल होते आ रहे हैं और अपना नया सर्वे भी नहीं करवा रहे, तो उन लोगों को अब निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बार नए लोग जिन्होंने डायनामिक सर्वे करवाया है, जिन लोगों की बेनजीर प्रोग्राम वाली किस्तें कुछ अर्सा पहले चली हैं, इससे पहले वो नाअहल थे, तो उन लोगों को ज्यादा तरजीह दी जाएगी। अब ये भी आपने परेशान नहीं हो जाना कि भाई हमें तो काफी अरसा से बेनजीर के पैसे मिलते आ रहे हैं या हम तो बेनजीर प्रोग्राम के लिए भी अहल नहीं है, तो फिर हमें रमजान पैकेज कैसे मिलेगा। तो भाई आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। आपकी रजिस्ट्रेशन जो है अगले 2 से 3 दिन में शुरू हो जाएगी। ठीक है, और मुख्तलिफ अफसूख ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि भाई 80-70 के जरिए रजिस्ट्रेशन होगी, लेकिन ताहाल 80-70 की बहाली नहीं हुई। अगर आप कोई मैसेज भेजते भी हैं, अपना ID कार्ड नंबर भी लेके भेजते हैं, तो आपको खातिर खा कोई जवाब नहीं मिलता। तो इस सूरत में हम आपको यही मशवरा देंगे कि आप इंतजार करें अगले 2 से 3 दिन का, और अभी
अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें। इंशाल्लाह अगर आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि हम आपको बताएंगे कि भाई अभी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है और फलां तरीक़ेकार है, आप ऐसे ऐसे जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन खुद कर लें और अहल हो जाएं। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार जानने के लिए आपको अभी से चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है ये मालूमात भी नहीं मिलेगी। जब मालूमात नहीं होगी तो आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो आपको इमदाद नहीं मिलेगी। तो भाई इस हवाले से हम कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी प्यारे बहन भाई हकदार हैं, प्रोग्राम्स में अहल होना चाहते हैं, तो उन्हें सही मालूमात पहुंचाई जाए, उन्हें सही तरीक़ाकार बताया जाए। लिहाजा आप भी इस हवाले से चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि जो ही आपके फ़ायदे की अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसके ज़रिए मुस्तफ़ीद भी हो सकें। अच्छा, पिछले साल आपने ये देखा था कि 5-5 हज़ार रुपए के मैसेजेस आए थे आपको 99 से, और वो मोबाइल नंबर हुकूमत के पास कैसे पहुंचा था। अभी आपको बता दें कि वो भी BISP की डेटा से मदद ली गई थी और BISP में जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था उसी पर आपको मैसेजेस भेजे गए और उसी पर आपको 99 से SMS मिला कि भाई आपकी वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज की 5,000 रुपए की रकम जो है वो आपके अकाउंट में भेज दी गई है। तो आप मुतलका बैंक के करीबी रिटेलर एजेंट्स के पास जाकर अपनी ये जो रकम है निकलवा सकते हैं। तो उस सूरत में हमने ये भी देखा कि काफ़ी सारे लोगों को वो मैसेजेस नहीं मिले। वो मैसेजेस क्यों नहीं मिले, उसकी असल वजह ये थी कि उन लोगों के पास वो वाला मोबाइल नंबर जो BISP में रजिस्टर्ड हुआ था, जिस पर मैसेज भेजा जा रहा है, जिस पर रकम आ रही है, वो मोबाइल नंबर उनके पास नहीं था, वो सिम उनके पास मौजूद नहीं थी। ठीक है, गुम हो चुकी थी या उनके मोबाइल में एक्टिव नहीं थी, जिस वजह से वो इस 5,000 रुपए से महरूम हो गए थे और फिर ये 5,000 रुपए की रकम जो है आखिरी रोजे के बाद वापस हुकूमत के खजाने में चली गई। तो इस बार आपको हमने पहले भी बताया है कि इस बार भी वैसे ही होगा। ठीक है, अगर आप रकम नहीं लेंगे तो वो वापस चली जाएगी और उसके लिए एक एहतियात लाजमी है। आप अपना वो मोबाइल नंबर सबसे पहले तो ये कंफर्म कर लें कि BISP में आपका कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। ठीक है, आप BISP की हेल्पलाइन 0800026477 पर कॉल करके भी मालूमात ले सकते हैं। जब आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई आपका फलां नंबर जो है ये BISP के लिए रजिस्टर्ड है, या सीधा सा आसान तरीन तरीक़ेकार ये है कि अगर आपको 8171 से मैसेज आते थे किसी सिम पर, तो वही सिम जो है आपकी BISP के लिए रजिस्टर्ड है। और वो लोग जिनको रिसेंटली बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वॉलेट सिम मिल चुकी है तो वो अपनी वॉलेट सिम पर ध्यान देंगे, उसको मोबाइल में एक्टिव किए रखेंगे। ठीक है, उस पर आपको वज़ीर-ए-आज़म के रमज़ान रिलीफ पैकेज की रकम का मैसेज आएगा। जब मैसेज आएगा तो फिर जाएंगे आप रिटेलर एजेंट के पास, उसे मैसेज भी दिखाएंगे और अपनी रकम वसूल कर लेंगे। ठीक है, इतनी सी बात है। जिस बंदे के पास सिम नहीं होगी या मैसेज मतलब आना भी था और उसके पास सिम ना होने की वजह से उसे नहीं मिला तो वो गफलत में भी रहेगा। उसे जब पता ही नहीं है कि भाई उसकी रकम आई हुई है तो फिर वो रकम नहीं ले पाएगा, आखिरी रोजे के बाद वो रकम वापस चली जाएगी। ठीक है, लेकिन जो पंजाब के लोगों के लिए सहूलत है वो ये है कि इन्हें निगहबान कार्ड मिल रहा है। ठीक है, निगहबान कार्ड जो है वो आपकी रकम आपके पास आ जाती है, आप जब चाहे निकलवा सकते हैं। ठीक है, लाइन कतारों में आपने नहीं लगना, जब आसानी हो जाए आप जाकर ATM से रकम निकलवाएं, बैंक ऑफ पंजाब के ब्रांच लेस बैंकिंग एजेंट से जाकर अपनी रकम निकलवाएं, तो उसके काफ़ी सारे तरीक़ेकार भी हैं इस्तेमाल करने के। ठीक है, तो वो उसका कोई मामला नहीं है कि अगर आप रकम वक्त पे नहीं लेंगे तो वो वापस चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। हाँ, कोई लंबा अरसा अगर आप कर लेते हैं कि आपका अकाउंट ही ब्लॉक हो जाए, आपका कार्ड ब्लॉक हो जाए, आप रकम ना लें, तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो रकम वापस हो जाती है। अगर आप इस्तेमाल में हैं, आपका कार्ड इस्तेमाल में लिए हुए हैं, तो फिर आपको कोई मसला नहीं आएगा, आपको पेमेंट्स जो हैं वो भी आप तक पहुंचेंगी, जब आप चाहेंगे निकलवा सकेंगे। अच्छा, अब अगर PSER की बात की जाए तो भाई PSER ही वाहिद रजिस्ट्रेशन का जरिए है पंजाब के लोगों का जो कि अब रमज़ान पैकेज में अहल हो रहे हैं। ठीक है, अभी आपको हमने अपडेट दी कि राशन कार्ड जो हैं उनको 3,000 रुपए की बजाय 7,000 रुपए इजाफी दिए जाएंगे राशन कार्ड होल्डर्स को, और ऐसे लोग जो राशन कार्ड में शामिल नहीं है और रमज़ान पैकेज का हिस्सा बन रहे हैं तो उनके लिए हुकूमत अलग से निगहबान कार्ड बना रही है। तो ये निगहबान कार्ड जो है इनकी तकसीम भी शुरू होने वाली है। अब जैसे ही आप तकसीम का लफ्ज़ सुनते हैं या ये सुनते हैं कि भाई प्रिंट हो चुके हैं, तो आपको एक ही ख्याल आता है कि भाई वो प्रिंट हो चुके हैं, उनमें हमारा कार्ड होगा या नहीं होगा, या फिर आपको ये ख्याल आता है कि भाई हमने तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई और ये कार्ड कैसे बनना शुरू हो गया, या हमें पता ही नहीं चला कि लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली और उनके कार्ड आना शुरू हो गया। तो भाई आप में से ही इनका इंतखाब किया जाएगा, आप भी इंशाल्लाह अहल होंगे। अगर आप हकदार हैं तो आपका कार्ड भी बन चुका है। अब एक सवाल होगा कि भाई कैसे बन चुका है, क्या बगैर अप्लाई के हम अहल हो चुके हैं? जी हाँ, आप बगैर अप्लाई के अहल हो चुके हैं, आपकी कोई कोर्ट के जरिए अप्लाई नहीं हुई, आपका वो जो PSER सर्वे हुआ है उसी की बुनियाद पर आप अहल हो रहे हैं, क्योंकि वो जो टीम आई थी वो आपकी रजिस्ट्रेशन करने आई थी, और एक ऐसी रजिस्ट्रेशन जो कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आपको अहल करवा सकती है। तो वही PSER सर्वे जो कि घर घर जाकर टीमें कर रही थी, उन्हीं की बुनियाद पर आपको रमजान निगहबान कार्ड जारी किए जाएंगे, उन्हीं की बुनियाद पर आपको ये 10
10,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो लोग सवाल कर रहे थे कि हम दोनों प्रोग्राम्स में ऐड हो सकते हैं, वफाकी हुकूमत के रमज़ान पैकेज में भी और सूबाई हुकूमत के रमज़ान पैकेज में भी, जी हाँ बिल्कुल आप हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक ही कैटेगरी मतलब मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग आप देखेंगे कि जिनको सिर्फ पंजाब हुकूमत या सूबाई हुकूमत इमदाद फराहम करेगी, और किसी को देखेंगे कि उसे वफाकी हुकूमत की जानिब से पैसे मिले हैं। तो इसमें आप रद्द-बदल देखेंगे, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में फैमिलीज ऐसी भी होंगी जिन्हें दोनों हुकूमतों की जानिब से ये नकद रकम जो है फराहम की जाएगी। तो इसके लिए उन लोगों का इंतखाब किया जाएगा जो हद से ज्यादा गरीब हैं। ठीक है, उनको दोनों प्रोग्राम से, दोनों पैकेजेस से, दोनों सूबाई और वफाकी हुकूमतों की जानिब से फौरी तौर पर नकद इमदादी रकम दी जाएगी। अगर ऐसा होता है, वजीर आजम शहबाज शरीफ के 10,000 रुपए की रकम और मरीम नवाज साहिबा की 10,000 रुपए की रकम, टोटल मिला के 20,000 रुपए मिल जाएंगे। तो ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो बात हो रही थी कि बगैर अप्लाई के PSER की बुनियाद पर आपको रजिस्टर्ड करने की, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि भाई हमारा कार्ड आ चुका है? तो उसके लिए भाई आपका जो मोबाइल नंबर PSER में रजिस्टर्ड है वो आप एक्टिव रखेंगे, उसी पर ही आपको कॉल की जाएगी, उसी पर ही आपको बताया जाएगा कि भाई आपका कार्ड आ चुका है, आप फौरी तौर पर अपना कार्ड जो है वो वसूल करें और एक्टिवेट करवा के आप ATM से जाकर अपनी 10,000 रुपए की रकम लें। तो अब ये कार्ड जो है घर घर पहुंचाए जाएंगे, मुतलका बंदे को दिए जाएंगे, और अगर मुतलका बंदा घर नहीं होगा तो ज़ाहिर सी बात है ये कार्ड वापस चले जाएंगे, या तो DC ऑफिस से मिलेंगे या करीबी यूनियन काउंसिल से मिलेंगे। बहरहाल इस हवाले से आपने कंफर्म करते रहने, हम भी आपको बताएंगे कि अब टीमें जो हैं कहाँ कहाँ पहुँच रही हैं और तकसीम शुरू हो चुकी है। तो जो ही तकसीम शुरू हो तो आप घर रहें और अपना ये निगहबान कार्ड जो है ये लाजमन वसूल करें। ठीक है, और उसके बाद एक्टिवेशन का प्रोसेस, जो ही आपको कार्ड मिल जाए तो आप फौरन इसी हमारे YouTube चैनल स्किल मेंटर पर पहुंचेंगे। अभी से भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर आप फौरन यहाँ पर हमें बताएंगे कि भाई हमारा कार्ड आ चुका है। तो फिर उसको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार और उससे अपनी रकम निकलवाने का तरीक़ाकार हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये कार्ड तो आपको मिल जाएगा, रकम तो लेने के लिए आपको अलग से तरीक़ाकार इख्तियार करना होगा। ठीक है, ATM से तरीक़ाकार अलग है, ब्रांच लेस बैंकिंग एजेंट से अपनी रकम लेने का तरीक़ाकार अलग है, इसके जरिए राशन की खरीदारी भी हो सकती है। वो तमाम तरीक़ाकार जो है हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए आप अभी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जो ही कार्ड्स मिलेंगे फिर भी हम फौरन ये मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे कि अपने कार्ड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अच्छा, एक और बड़ी अपडेट जो कि वीडियो के शुरू में भी हमने आपको बताई कि सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जिन लोगों के शनाख्ती कार्ड पर या जो पुराने शनाख्ती कार्ड हैं जिन पर उस्मान यूसुफ मुबीन के दस्तखत हुए पड़े हैं, तो उन शनाख्ती कार्ड्स पर कोई फंड मिल रहा है, 25,000 या 50,000 रुपए की रकम मिल रही है। तो भाई ऐसा वैसा कोई फंड नहीं है, ऐसी वैसी कोई स्कीम नहीं है। ठीक है, इस हवाले से आप किसी लिंक पर क्लिक ना करें, किसी को अपना ID कार्ड ना भेजें, और इस हवाले से ज़रूर एहतियात बरतें, क्योंकि इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो ये उस्मान यूसुफ मुबीन वाला जो भी मामला है इसमें कोई हकीकत नहीं है, इससे कोई फंड नहीं मिल रहा है, इससे कोई रकम नहीं मिल रही। ठीक है, तो बस आप अपना शनाख्ती कार्ड अपने पास रखें, महफूज रखें, और रमज़ान पैकेजेस का हिस्सा बनकर रमज़ान पैकेजेस से ही इमदाद वसूल करें। इस उस्मान यूसुफ मुबीन वाले ID कार्ड के बारे में हम पहले भी काफ़ी वीडियोज़ में आपको बता चुके हैं, लेकिन नए लोग जो आते हैं उन्हें पता नहीं होता, वो बार बार सवाल करते हैं, तो हमें बार बार बताना ही पड़ता है। तो इस हवाले से इंशाल्लाह रमज़ान पैकेज की मुकम्मल मालूमात आइंदा के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेंगी, रजिस्ट्रेशन हो या इमदाद लेने का तरीक़ाकार हो, जो अभी से YouTube चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप भी रमज़ान पैकेज का हिस्सा बनना चाहते हैं, फौरी इमदाद लेना चाहते हैं, तो अभी से इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको हर वो अपडेट देंगे जो रमज़ान पैकेज की रजिस्ट्रेशन से लेकर इमदाद लेने तक के मुतल्लिक होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।